Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So here we are going to study the chapter 11 Electricity of class 10 science. So we are going to study all the basic concepts, cover all the exercise questions which are given in between the chapter and all the examples as well. We will see the approach, how the numerical problems are solved, and for back exercises we have dedicated a special lecture to that. I'll post the link to that also. You can watch if you want to cover the back exercises as well. If you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel to get regular updates regarding the syllabus completion. So let us now understand what does an electric circuit mean. Okay, so electric circuit क्या होता है? It is a closed path through which electric current will flow. Okay, usually it will involve a power source like a battery, conductive wires, and components like resistors or bulbs. The circuit allows electrons to move from one point to another, enabling the devices to function by powering them with electricity, right? So this is an electrical circuit. Now, what is electric current? This is a basic term which we are going to see in this chapter. So electric current, it is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Okay. In other words, we can say it is the rate of flow of electric charges, right? In circuits using metallic wires, electrons constitute the flow of charges. However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. Okay, so electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. Okay, conventionally in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons, which are negative charges. Okay, क्योंकि जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई थी, इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम, मतलब वो डिस्कवर नहीं हुए थे. ओके, तो जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, सपोज डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, right? So we will try to answer these two questions on the basis of this text. We have to define the unit of current and calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Okay. So now if a net charge capital Q flows across any cross section of a conductor in time t, तो current को denote हम कर रहे हैं capital I से. I through the cross section is, इसका formula होता है I is equal to Q by T. This is very important. ये आपका काफी यूज होगा न्यूमेरिकल्स में भी. Okay. Now SI unit of electric charge is coulomb, जिसे हम denote करते हैं capital C से. It is equivalent to a charge contained in nearly 6 into 10 raised to the power 18 electrons. Right. Now we know that electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. Now the electric current is expressed by a unit of ampere. So 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. Okay. So 1 ampere is 1 coulomb by 1 second. This we can write. Okay. And small quantities of current can be expressed in milliampere. 1 milliampere क्या होता है? 10 raised to the power minus 3 amperes. And in microampere, 1 microampere होता है 10 raised to the power minus 6 amperes. Right? So हमारे questions answer हो गए. Define the unit of current. क्या है unit of current? Amperes. Right? And the number of electrons constituting 1 coulomb of charge, it is 6 into 10 raised to the power 18 electrons. Correct? So now we have a schematic diagram of an electric circuit. It comprises of a cell. ठीक है, कहाँ है? This part is the cell. ये positive end है, ये negative end है. Okay. Electric bulb. This is the symbol of electric bulb. Ammeter. This is ammeter. A symbol A लिखा हुआ है इसके center में. This is positive terminal. This is negative. And a plug key. ये हमारा plug key है. Okay. तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, कैपिटल आई हमने शो किया है. देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह मूव करता है करंट. और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में.
ठीक है। नाउ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये जो एमीटर लगा हुआ है ये क्या करेगा, ये हमें मेजरमेंट करके देगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस सर्किट, राइट। It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. तो ये इस तरह से सीरीज में कनेक्ट होता है, right? This figure shows a schematic diagram of a typical electric circuit that comprises a cell, an electric bulb, an ammeter, and a plug key. Okay? इसमें हमें नोट करना है electric current flows in the circuit from positive terminal of cell to the negative terminal of the cell through the bulb and the ammeter. इस तरह current flow कर रहा है, right? So here is a very good example. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Right. So current is given to us and the time for which it is flowing, it's given to us 10 minutes. So we write I, capital I denotes the current 0.5 amperes and time 10 minutes. But आपको unit लेना होगा seconds में. So 10 minutes is equal to 10 into 60 seconds. So 600 seconds. Right. We have to find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो Q क्या हो जाएगा? Q is equal to I into T. Okay? तो ये आप फॉर्मूला you should know. Q is equal to I into T. इसका दूसरा फॉर्म होता है I, that is current will be equal to charge upon time. तो Q by T. तो आप T को अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q क्या आ जाएगा? IT. I और T की वैल्यूज रखी हमने तो आंसर क्या आ जाएगा? 300 coulombs. Coulombs is the unit of charge, right? Next, we are going to define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current. Okay, so it is the work done to move a unit charge from one point to the other. ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सपोज आपको दो पॉइंट्स दे दिए ए एंड बी, ठीक है, तो क्या होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज का मतलब क्या हुआ? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. ठीक है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करना हो अगर हमें ए से बी पॉइंट तक, तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा? दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. Okay, so we can write potential difference capital V between 2 points is work done W upon charge Q. Okay, so this is the equation V is equal to W by Q. इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो. We can write W is equal to QV. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो W will become QV, right? SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की? इट्स वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करते हैं. ओके, 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? इट्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर. ठीक है, अगर आपका इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं तो वो 1 वोल्ट होता है. सो 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय 1 कूलम्ब या 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, राइट. अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर. ओके, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड. जैसे सपोज यहाँ ए और बी पॉइंट्स के बीच में हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता तो हम इस तरह पैरेलल में लगाएंगे. जैसे ये एक वायर जा रही है सपोज, ओके, और इसमें ए और बी पॉइंट्स के बीच में निकालना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस तरह हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे. ओके, वोल्ट मीटर को इस तरह हम सर्कल से डिनोट करते हैं और सेंटर में लिख देते हैं कैपिटल V. सो दिस इज आवर वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट. So here is a question. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करा सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ अ बैटरी दैट कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, राइट. अब हम एक स्मॉल न्यूमेरिकल देखते हैं. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स. ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है? लेट्स सी. तो 2 कूलम्स दिस इज द चार्ज, तो ये बेसिकली हमें कैपिटल Q गिवन है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स, तो ये बेसिकली हमें कैपिटल V गिवन है. और निकालना क्या है? वर्क डन कैपिटल W.
और अभी हमने देखा था W का फॉर्मूला क्या है, V into Q. तो we put the values and we get the value as 24 joules. तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, joules, right? So here is another conceptual question. ये हमने अभी देखा था कि what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt. तो इसका मीनिंग है कि 1 joule of energy is transferred to each coulomb of charge moving between those points, right? Next question is how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. तो अब हमारा charge कितना हो गया है इसमें, each coulomb means 1 coulomb. So Q is 1 coulomb, right? Voltage कितनी है, 6 volts. Q and V is given to us, okay? And we have to find out the energy. So Q into V, it's going to give you 6 joules, right? So 6 joules of energy. So this is very interesting. We are going to see the circuit diagram symbols which we can use. These will be very useful. तो इनको आप practice करो, right? Electric cell हम इस तरह denote करते हैं. Plus denotes the positive terminal, minus denotes the negative terminal. Second is a battery or a combination of cells. तो इसमें आपने बहुत सारे electric cells लगा दिए like this, okay? Then plug, key or switch. This is open. ओपन है, इसमें बीच में कुछ नहीं है, ओके. क्लोज्ड है अगर तो बीच में एक डॉट लग जाएगा, राइट. अ वायर जॉइंट किस तरह दिखाएंगे, आप एक डॉट लगा देते हो, डार्क डॉट, तो यहाँ जॉइंट है. देन वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, तो इस तरह से आप इसको मूविंग दिखा दोगे, राइट. सो नेक्स्ट वन इज दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब सिंबल. रेजिस्टेंस और रेजिस्टर कैपिटल आर. वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टाट, ये क्या होता है, रियोस्टाट आप अगर लैब में देखोगे, इट इज अ डिवाइस जिसमें आप मूवमेंट करके, एक नॉब होता है, उसे मूव करके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद अभी हमने देखे थे इंस्ट्रूमेंट्स. दिस इज एमीटर टू मेजर द करंट कनेक्टेड इन सीरीज, एंड दिस इज अ वोल्ट मीटर that is used to measure the voltage or potential difference between the 2 points, and it is connected in parallel, right? See, now we'll understand what is Ohm's law, right? So Ohm's, he found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals, ठीक है. तो potential difference across the ends of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. ये हमारी observation थी. Provided the temperature remains the same. Okay, temperature constant रहेगा. तो ऑब्जर्वेशन से एक वी आई ग्राफ ड्रॉ किया था इन्होंने, वी वाई एक्सिस पे ड्रॉ करा है और आई करंट ड्रॉ करा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे. तो हमें जो पॉइंट्स मिले वो कुछ इस तरह एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, ओके. तो बेसिकली वी कैन से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट. सो वी बाय आई इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट. उस कांस्टेंट को हमने नेम कर दिया आर. सो वी कैन राइट वी इज इक्वल टू आई आर. सो दिस इज आवर ओम्स लॉ, राइट. सो आर जो कांस्टेंट है, अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट. फॉर अ गिवन टेम्परेचर आर होता है रेजिस्टेंस, ओके. रेजिस्टेंस होता है ये, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ठीक है. इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ओके. इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ये ओम का सिंबल है. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है. So if a potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, so तब उसकी resistance क्या होती है, 1 ohm. और 1 ohm हो जाएगा 1 volt upon 1 ampere. So इससे हम ये भी लिख सकते हैं I is equal to V by R. Different forms हो गए same equation के, right? अब इस इक्वेशन से ये हमें पता चलता है कि करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है. रेजिस्टेंस डबल कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है. तो काफी प्रैक्टिकल केसेस में ये जरूरी होता है, जैसे हमें करंट इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके करंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance, ठीक है. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance of the circuit.
ये हमने सिंबल्स में भी देखा था जब वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का हमने सिंबल ड्रॉ करा था, तो हमने यही पढ़ा था कि एक नॉब होती है, उसे मूव करके हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, तीन चीजों पे बेसिकली डिपेंड करती है ये। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, नाउ अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर के लिए कंसिडर करते हैं, अगर उसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इफ वी कंबाइन दीज इक्वेशंस, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A लिख सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस कर दिया तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, राइट। इधर जो ये रो है ये रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, और ये डिपेंड करती है मटेरियल प्रॉपर्टीज पे, करेक्ट। So rho is a constant of proportionality. It is called electrical resistivity of the material of the conductor. इसकी SI unit क्या होती है? SI unit is ohm meters, right? Now it is a characteristic property of the material. Okay. Metals और alloys जो होते हैं उनकी resistivity बहुत कम होती है, ठीक है। रेंज होती है 10 raised to the power -8 ohm meter to 10 raised to the power -6 ohm meter, right? So they are good conductors of electricity, and insulators like rubber and glass, they have a resistivity of the order 10 raised to the power 12 to 10 raised to the power 17 ohm meter. थोड़ा सा आप ये consider कर लेना इसमें. Both the resistance and resistivity of a material they vary with temperature. Temperature के साथ obviously conduction change हो जाता है, ठीक है. तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय, अलॉय क्या होता है आपने देखा था, जैसे ब्रॉन्ज होता है, ब्रास होता है, दीज आर अलॉयज. तो इट इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है. अलॉयज जो होते हैं दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स. ओके, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर्स के अंदर. ओके, एंड टंगस्टन जो होता है इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, राइट. एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन्हें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, राइट. सो बेसिकली रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स लीस्ट होती है, फिर अलॉयज की उससे ज्यादा होती है, और इंसुलेटर्स की मैक्सिमम होती है, राइट. So now let us see a numerical problem. It says how much current will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohms. ठीक है, वोल्टेज गिवन है 220 volts, रेजिस्टेंस गिवन है 1200 ohms, और हमें करंट फाइंड आउट करना है. तो करंट I इज इक्वल टू किसके इक्वल था? V अपॉन R. ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 220 by 1200 it gives 0.18 amperes, right. Next is how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance is 100 ohms. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस हो गई 100 ohms. तो करंट का वही फॉर्मूला लगाएंगे, V by R, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 220 upon 100 it gives 2.2 amperes, right. So here comes another numerical. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts when it draws an electric current of 4 ampere from the source. Okay. Now what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? Right. तो इनिशियली हमें क्या गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू है 60 वोल्ट, सो V 60, और करंट है हमारा I इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स. तो इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ओम्स लॉ यूज करके. R इज इक्वल टू V अपॉन I, सो 60 by 4 gives us 15 ohms. ओके, तो अब रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड ही रहेगी, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी सेम टेम्परेचर पे. ओके, तो रेजिस्टेंस अब हमारी 15 ओम्स हो गई, और अब हमारी वोल्टेज चेंज हो गई है 120 वोल्ट्स. ठीक है, तो वोल्टेज 120 वोल्ट्स है और रेजिस्टेंस 15 ओम्स है, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट की क्या इक्वेशन थी? I इज इक्वल टू V बाय R. तो 120 by 15 it gives 8 amperes. ओके, तो आपने देखा वोल्टेज आपने डबल कर दी, 60 वोल्ट से 120 वोल्ट, तो आपका करंट भी डबल हो गया, 4 एम्पियर से 8 एम्पियर्स, राइट. So let us see another example.
resistance of a metal wire of length 1 meters is 26 ohms at 20 degrees Celsius. ठीक है? If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Okay, so how do we solve this kind of a question? So we know that R, the resistance, is equal to what? Resistance is equal to rho L by A, right? This formula we have studied, that resistance is given by rho L upon A. Okay, now एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, वायर सिलिंड्रिकल होती है, उसका कुछ रेडियस होगा. फाइन. अब अगर रेडियस को हम डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो रेडियस इज बेसिकली डायमीटर अपॉन 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई और आर की जगह हम लिख देंगे डायमीटर बाय 2 होल स्क्वायर. ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर. ठीक है, और ये किसके इक्वल है? ये रेजिस्टेंस के इक्वल है. तो इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके रो की वैल्यू लिखेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन. तो रो आ जाएगा हमारा आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l. ठीक है, अब आपको R की वैल्यू पता है. R कितना गिवन था इसमें? 26 ohms. ठीक है, L की वैल्यू पता है हमें 1 मीटर्स. L की वैल्यू ये पुट कर देंगे और डायमीटर हमें mm में गिवन था तो mm वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में. तो 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मीटर्स. ओके, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर्स. तो ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी दिस मच इन ओम मीटर्स. करेक्ट. अब इसमें लिखा है एक टेबल गिवन है, बुक में आप टेबल देखोगे तो उसमें हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है. तो आप मैच करोगे तो ये वैल्यू आती है मैंगनीज के लिए. तो मटेरियल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, द मटेरियल ऑफ द वायर इज मैंगनीज. राइट. So here is another numerical. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं. A wire of given material having length L and area of cross section A, it has a resistance of 4 ohms. Okay. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? ठीक है, तो इसमें दो केसेस हैं, वायर 1 एंड वायर 2, बट मटेरियल सेम है. मटेरियल सेम होने से क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट केस में R1 ले लेते हैं रेजिस्टेंस. R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है. ठीक है, आपने वैल्यू पुट की है 4 ohms गिवन है. सेकेंड वायर में लेट से R2 है रेजिस्टेंस, तो रो तो सेम रहेगा. ठीक है, क्योंकि सेम मटेरियल है. L कितना है सेकेंड केस में? L बाय 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी लेंथ की, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2A, तो वो भी वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय 4 रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए हमें 4 गिवन था. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी गेट R2 एज 1 ohm. तो न्यू वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ohms हो जाएगी. ठीक. So now we are going to see some conceptual questions. बहुत important होते हैं ये. On what factors does the resistance of a conductor depend? अभी हमने पढ़ा है it depends on conductor's length, cross sectional area, material and temperature also. क्योंकि एक given temperature पे rho L by A formula applicable होता है. ठीक है. Second question is, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? ठीक है, तो थिक और थिन इसको हम इस तरह से देखते हैं, जैसे रेजिस्टेंस था हमारा रो एल बाय ए, तो हम ए पे इसका डिपेंडेंस देखना चाह रहे हैं. ठीक है, तो थिक वायर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर. तो अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट हमारा बढ़ता है. ओके, तो इजीली किससे फ्लो करेगा? इट विल फ्लो थ्रू थिक वायर, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस लेस होगी एज कंपेयर टू थिन वायर. राइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half its former value. ठीक है, रेजिस्टेंस सेम रहती है
बट हमारी जो वोल्टेज है वो हाफ हो जाती है. What change will occur in the current through it? So let us solve this. तो करंट हम कैसे लिख सकते हैं? करंट we can write down as V upon R. R तो सेम रहता है. वोल्टेज अगर कम होगी, ठीक है, तो करंट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, राइट? So if potential difference is half, resistance remains constant, current will also decrease to half its initial value, right? Now, why are coils of electric toasters and electric irons made of alloy rather than a pure metal? क्योंकि alloys की resistance ज़्यादा होती है and they can withstand high temperatures without melting, unlike pure metals, right? So that's why we use them. Next is we have to use the data in table 11.2. तो इसमें resistivity based data given था कि किसकी कितनी resistivity होती है material की. So we are asked like which among iron and mercury is a better conductor. ठीक है, तो iron is a better conductor because उसकी resistivity कम होती है. Okay, resistivity कम होगी तो current ज़्यादा होगा. Now, second is which material is the best conductor? Silver होता है best conductor. और आपको पता होगा आजकल जो solar panels चल रहे हैं उसमें जो connecting wires बनाते हैं internal वो silver की ही बनती हैं. It is the best conductor, right? So here comes the most important topic of the chapter, resistance of a system of resistors. अब resistances होती हैं हमारे पास, उन्हें हम अलग अलग ways में connect कर सकते हैं, ठीक है? तो दो हम अरेंजमेंट्स देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज. सीरीज में देखो आप, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ये तीसरी रेजिस्टेंस है. ओके, तो इस फॉर्म में अगर हम इन्हें कनेक्ट करते हैं, दिस इज सीरीज फॉर्म ऑफ रेजिस्टर्स. पैरेलल फॉर्म ऑफ रेजिस्टर्स है सेकंड. पैरेलल में देखो 1 2 3 तीन रेजिस्टेंसेस को किस तरह कनेक्ट किया है, राइट? दिस इज द वे इन पैरेलल वी कनेक्ट द रेजिस्टर्स. अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना चाहें कि क्या है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? सीरीज में जस्ट आपको तीनों वैल्यूज को ऐड करना होता है, ठीक है. सो आर एस हमारी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट. पैरेलल में क्या होता है? अगर Rp हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो रेसिप्रोकल्स लेते हैं इस केस में. These are both the formula you should remember. और इसमें क्या याद रखने की चीज है? सीरीज में हमेशा तीनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट सेम रहेगा, ठीक है. अगर आप यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर भी आई होगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई. तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है सभी रेजिस्टेंसेस के लिए, राइट? और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए वोल्टेज सेम रहेगी, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जैसे R1 के लिए, R2 के लिए या R3 के लिए, ठीक है. ऑल आर गोइंग टू बी द सेम. So here we have another numerical. So we have to solve this. An electric lamp whose resistance is 20 ohms. Okay. तो इसकी resistance हमें कितनी given है? 20 ohms. And a conductor of 4 ohm resistance, ये given है, are connected to a 6 volt battery. Okay. We have to calculate the total resistance of the circuit. 4 ohms और 20 ohms कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड है. और सीरीज में हमने देखा था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है. दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 20 gives 24 ohms. फर्स्ट पार्ट इज डन, राइट. करंट थ्रू द सर्किट. करंट क्या होगा? करंट हमें पता है I इज इक्वल टू V बाय R. इसमें इफेक्टिव R है RS, तो RS हो जाएगा. वोल्टेज कितनी गिवन थी? 6 वोल्ट. रेजिस्टेंस कितना आया है? 24 ohms. So 6 by 24 gives 0.25 amperes. Okay. Now next we have to find out the potential difference across electric lamp and conductor. One by one करेंगे. तो 20 ohms के लिए और 4 ohms के लिए, ठीक है. तो 20 ohms के लिए यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है. तो करंट है हमारा 0.25 एम्पियर्स अभी हमने निकाला है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 20 ohms. जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू एज 5 volts. और दूसरे 4 ohms वाले रेजिस्टेंस के लिए 4 ohms is the R value. करंट सेम रहेगा, सीरीज में सेम रहता है 0.25, so 1 volt.
right? So here comes the next question. Draw a schematic of a circuit consisting of a battery of 3 cells, 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor, and a plug key, all connected in series, right? So अगर आपको सारे symbols पता हैं तो it's quite easy to draw, ठीक है? One by one draw करते हैं इसको. जैसे suppose हम बैटरी से start करते हैं, ठीक है? ये हो गया one cell, this is second cell, this is third cell, ठीक है? 2 volt के हैं सभी cells, so we can write down 2 volts, okay? This is plus, this is minus, ये इसका plus, इसका minus, ये इसका plus, इसका minus, ठीक है? और क्या connected है? 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, फिर 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है. You can mention the values on the top, 5 ohms, 8 ohms and 12 ohms. Correct? And a plug key. Plug key यहाँ पे आप closed form में दिखा दो. All connected in series. So this is the schematic diagram, right? So now we have to redraw the question. The same question, ठीक है? अभी जो हमने किया था, we have to redraw the circuit of question 1, putting an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor, ठीक है? तो हमें readings भी बतानी है कि ammeter और voltmeter की क्या readings होंगी, right? So let us draw. तो हमारे पास 3 resistors थे इसमें, right? एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? कभी भी करंट मेजर करना होता है हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट? एंड देन वी वर हैविंग 3 बैटरीज, 3 cells in the battery और एक हमारा plug. So this was plus minus 2 volt battery each, right? And we were having 3 resistances, R1, R2, R3 ले लेते हैं इसको. One of them is 12 ohms, ठीक है? Now, अगर suppose हमें 12 ohm resistor के across voltage निकालनी है तो यहाँ पे हमारा voltmeter connect होगा, ठीक है? जिसके across निकालनी है voltage वही हमारा वहीं पे connect हो जाएगा. Okay, so this way we are going to connect. तो हमारा first part of the question is clear कि हमने circuit draw कर दिया और voltmeter और ammeter को connect कर दिया. राइट नाउ व्हाट वुड बी द रीडिंग्स. अब हमें रीडिंग्स निकालनी है, ठीक है? तो इसमें रीडिंग कैसे, पहले हम एमीटर की रीडिंग निकालते हैं. एमीटर बेसिकली करंट मेजर करता है. करंट इसमें क्या होगा? V बाय आर. टोटल वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट्स. क्योंकि 2 वोल्ट के 3 सेल्स लगे हुए हैं ना, तो बैटरी 6 वोल्ट्स की हो जाएगी. 2 + 2 + 2 वोल्ट, 6 वोल्ट्स. और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में. तो R1 + R2 + R3. आप तीनों वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड देन करंट. ओके, दूसरा पार्ट है हमारा, हमें वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है. वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? अब वोल्टमीटर की रीडिंग हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए निकालनी है यहाँ पे, ठीक है? R3 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? इसको V3 एज्यूम कर लो, ठीक है? V = I, करंट तो तीनों के लिए सेम है, इंटू R3. तो I हमारा यहाँ से आ जाएगा, जो भी वैल्यू आए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. और R3 कितना है? 12 ohms. सो इट विल बी I × 12 volts. आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर्स, राइट? So here is another question. In the circuit diagram given in figure 11.1, so okay, what the figure 11.1 shows, it shows 3 resistances in parallel, ठीक है? हमारे R1, R2 और R3 they are connected in parallel, right? तो इसमें R1 की वैल्यू गिवन है 5 ohms, R2 is 10 ohms and R3 is 30 ohms and it has been connected to a battery of 12 volts. तो इस तरह से एक सिंगल बैटरी कनेक्टेड है यहाँ 12 volts की, करेक्ट? So we are asked to find the current through each resistor, total current in the circuit and the total circuit resistance. Okay, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है रेजिस्टेंस की? इट्स 5 ohms, 10 ohms and 30 ohms. ओके, तो हम एज्यूम करेंगे कि R1, R2, R3 हैं ये हमारे रेजिस्टेंसेस. तो इस वाली ब्रांच में लेट से करंट है I1
ठीक है, इधर है करंट I2 और थर्ड इधर है करंट I3। तो इसमें आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट से डिफरेंट रहेंगे। ओके, तो I1 I2 I3 वन बाय वन निकाल सकते हैं। वोल्टेज तो सभी के लिए 12 वोल्ट्स रहेगी। तो करंट किसके इक्वल होता है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज हो गई 12 वोल्ट्स और R1 की वैल्यू है 5 ओम्स, तो हमारा I1 आ जाएगा 2.4 एम्पियर्स। ओके, I2 के लिए फिर अगेन V by R2 हो जाएगा। V is 12 volts, R2 is 10 ohms, so we get 1.2 amperes. I3 के लिए V upon R3 हो जाएगा। V तो कांस्टेंट 12 volts ही रहेगा अपॉन 30, it gives 0.4 amperes. सेकेंड है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट क्या होगा? तीनों का सम हो जाएगा I1 plus I2 plus I3, it gives you 4 amperes, right? और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि RP है। तो पैरेलल में आपको पता है क्या फॉर्मूला था? 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we get RP value as 3 ohms. Very important question. So here is another important question. We are given a figure, okay? इसमें सारी values given है, R1, R2, R3, R4, R5 सबकी values given है और 12 volt की battery given है. So we have to find the total resistance in the circuit. So let us see how we solve this kind of a question. तो पहले हम values लिख लेते हैं. R1 की value है 10 ohms, R2 की value है 40 ohms, R3 is 30 ohms, then R4 is 20 ohms and R5 is 60 ohms. Correct? Now, अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है और वोल्टेज भी गिवन है 12 वोल्ट्स, ओके, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कनेक्टिंग टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टिंग 3 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो पहले हम इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ठीक। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। लेट से इस वाले पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है R डैश, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 1 upon R डैश इज इक्वल टू 1 upon 10 प्लस 1 upon 40। पैरेलल का फॉर्मूला लग गया। तो हमारा जो R डैश है उसकी वैल्यू आ गई है 8 ohms, ठीक है। R डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 8 ohms। और लोअर पोर्शन वाले का हमने अज्यूम कर लिया, इसका लेट से R डबल डैश है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो 1 upon R डैश इज इक्वल टू 1 upon 30 प्लस 1 upon 20 प्लस 1 upon 60। ये हमारा पैरेलल वाला फॉर्मूला लग गया, तो R डबल डैश आ जाएगा 10 ohms, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 10 ohms। तो अब अगर हम इफेक्टिव सर्किट बनाए तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे R डैश लगा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, इधर R डबल डैश आ जाएगा, ठीक, फिर एक की आ गई और यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी, लाइक दिस। तो ये हमारे अब R डैश और R डबल डैश सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन्हें ऐड कर देंगे। तो 8 प्लस 10 विल गिव यू 18 ohms। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी सर्किट की? 18 ohms, करेक्ट। टोटल करंट, फिर करंट पूछा है, करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी थी हमारी? 12 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस कितना आ गया इफेक्टिव? 18 ohms। तो करंट हो जाएगा 0.67 एम्पियर्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हम एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है, एक का वैल्यू है R1, एक की R2 है। तो आपने देखा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज R1 प्लस R2। तो हमेशा सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल वैल्यूज से बड़ा आएगा, ठीक है। जैसे एक की वैल्यू 1 है, एक की 5 है, तो 6 आया, तो 6 इज ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, 6 इज ग्रेटर देन 5 ऑल्सो, ठीक। और अगर आप सेम चीज कंसिडर करते हो अब पैरेलल में, ठीक है, एक वैल्यू है R1 और एक वैल्यू है R2, तो आप कभी भी देखना RP जो आएगा ना, टोटल रेजिस्टेंस, इट विल बी स्मॉलर देन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज। R1 और R2 दोनों की वैल्यूज से छोटा ही आएगा, आप किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर लेना, राइट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। So we are seeing some facts now. In a series circuit, the current is constant throughout the electric circuit. ये हमने देखा, right?
ये इम्प्रैक्टिकल होगा अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट करें, ओके क्योंकि दोनों की करंट नीड्स जो हैं वो बहुत वाइडली डिफरेंट हैं, ओके सो दे विल नॉट ऑपरेट प्रॉपरली। ये इसका डिसएडवांटेज है सीरीज का, ठीक है। एक और डिसएडवांटेज है कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, सर्किट ब्रोकन हो जाता है, ठीक है, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो कोई भी कंपोनेंट फिर वर्क नहीं करेगा, ओके सो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। एक फेरी लाइट्स यूज होती हैं बिल्डिंग्स की डेकोरेशन के लिए, फेस्टिवल्स पे या मैरिज सेलिब्रेशंस में। तो द इलेक्ट्रिशियन ही विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब। वो उसको लोकेट करके करते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं किसका फ्यूज आउट हो गया है, ओके सो पैरेलल सर्किट में ये प्रॉब्लम नहीं आती। पैरेलल सर्किट डिवाइड कर देता है करंट को थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ओके टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट की डिक्रीज हो जाती है जैसा हमने यहाँ देखा था, ओके so this is helpful when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly। तो इसीलिए हम जैसे जो हाउस होल्ड्स में यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन ही यूज करते हैं, क्योंकि सीरीज में तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। So let us see some questions now. First question is judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel, ठीक है। एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10 raised to the power 6 ohms, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट छोटे वाले के इक्वल हो जाएगा 1 ohms, ओके देन सेकंड वन 1 ohm 10 raised to the power 3 ohm and 10 raised to the power 6 ohm, तो इसमें भी लोएस्ट के ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि रेंज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ओके सेकंड लेट अस सी an electric lamp of 100 ohms, a toaster of resistance 50 ohms, water filter of resistance 500 ohms, these are connected in parallel to a 220 volt source, ठीक है। Now what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all these three appliances, and what is the current through it? तो इन्हीं जितना करंट लेगा तो इन जितना रेजिस्टेंस होगा उसका, ठीक है। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंसेस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 प्लस 1 नो 3 ओनली, सो 1/500। तीन रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, तो इससे आपको आरपी की वैल्यू मिल जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक। अब जो आपको आरपी की वैल्यू मिली है उसे यूज करके आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करेंगे, करंट कैसे आएगा, यहाँ से आपको पता है कि आपकी आरपी की वैल्यू आई है, आरपी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो करंट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज कितनी गिवन है इस केस में 220 वोल्ट्स अपॉन आरपी की जो आपकी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके सो यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट लाइक दिस। So the third question is, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? क्या benefits होते हैं? So each device will get the same voltage as the source, okay? डिवाइस इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगी, अगर एक डिवाइस फेल हो गई तो बाकी सबको अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इट अलाउज मोर करंट टू फ्लो, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ओके। Next is, how can three resistances of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohms? ठीक है, हमें 4 ohms का effective resistance चाहिए. So how we are going to connect these? Let us see. So it's a hit and trial only. We'll have to check. तो हम एक पैटर्न ड्रॉ करके देखते हैं. Let's see what it gives. सपोज हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस इज 3 ohms एंड दिस इज 6 ohms, ओके। तो 3 और 6 ohms का इफेक्टिवली कॉम्बिनेशन हम चेक कर सकते हैं कि इसका ये पैरेलल में है ना दोनों, ठीक है। तो 1/RP is equal to 1/3 plus 1/6, okay, what it's going to give you, you can take an LCM of 6 here. So it will give you 2 plus 1. So RP would be 2 ohms, right? तो इसका जो इफेक्टिव सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 ohms, और इन दोनों का आ गया पैरेलल में
2 ohms। तो ये टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में 2 + 2 4 ohms। यस, सही है। तो 4 ohms आ जाएगा हमारा इस तरीके से, अगर हम इसको लेते हैं कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, एक और करके देखते हैं 1 ohms के लिए। लेट्स ट्राई आउट। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पैरेलल में हमें देखो इतना तो पता है कि 2, 3 और 6 से छोटी वैल्यू आएगी, तो मे बी 1 ohms आ जाए। लेट्स चेक। तो इसमें हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। एलसीएम लेंगे 6, इट बिकम्स 3 + 2 + 1 हो जाएगा RP। यस, डेफिनेटली। तो इस टाइप का हमारा कॉम्बिनेशन दे देगा 1 ohms, राइट। Now let us solve the fifth question. What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of these resistances? Very conceptual question. तो highest कैसे मिलेगा हमें? Highest मिलता है जब हम सबको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो highest आपका सीरीज में मतलब सब ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 8 + 12 + 24, so it will give you 48 ohms। तो 48 ohms वैल्यू है जो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल है यूजिंग दीज सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस। और लोएस्ट कब मिलेगी? लोएस्ट मिलेगी जब सभी को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। 1/RP वुड बी 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, और इसका हमारा इफेक्टिव एलसीएम आ जाएगा 24। इट वुड बी 6 + 3 + 2 + 1, सो RP वुड बी 2 ohms, ठीक है। तो इन सभी वैल्यू से छोटी वैल्यू आई है ना, तो 2 ohms लोएस्ट है, 48 ohms हाईएस्ट है, राइट। Now we are going to study the heating effect of electric current. Now we are considering a current I flowing through a resistor of resistance R, ठीक है। Potential difference across it हमने लिया है V, okay। T is the time during which the charge Q flows across. T time के लिए flow कर रहा है, तो work done in moving the charge Q through a potential difference V कितना होगा? V into Q, okay। So source must supply energy equal to VQ in time T, right? तो power input to the circuit by the source is VQ/T, और Q/T क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इट्स करंट I। तो P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू VI आ गया, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड क्या होती है? पावर इंटू टाइम। पावर VI है तो VI इंटू टाइम, इट बिकम्स VIT। और जो एनर्जी सोर्स देता है वो जाती कहाँ है? इट इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर एज हीट, ओके। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी हो जाएगी? VIT। ओम्स लॉ अप्लाई कर दें हम, V की वैल्यू IR पुट कर दें, तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू I² RT, राइट। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कई बार पूछ लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ पढ़ा था बुक में, तो ये आपको याद रखना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? H इज इक्वल टू I² RT, ओके। नाउ द लॉ implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance. It is directly proportional to resistance and directly proportional to time for which the current flows. Okay. In practical situations में क्या होता है? Electrical appliance को आप connect करते हो to a known voltage source, ठीक है? It is used after calculating the current through it. Okay. Now let us solve some examples, okay. An electric iron consumes energy at a rate of 840 watts, ठीक है। 840 watts is given to us. It is the power, okay. So P is 840 watts here. When heating is at the maximum rate, and 360 watts when heating is at the minimum. इसको ऐसे P1 P2 ले लो, तब है 360 वॉट। ये मैक्स के लिए है, ये मिनिमम के लिए है, ठीक है। एंड वोल्टेज हमें दे रखी है, वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। तो हमें दोनों ही केसेस में करंट और रेजिस्टेंस निकालने हैं, ओके। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें? P इज इक्वल टू VI, यहाँ से I हो जाएगा P/V। फर्स्ट केस में P है 840, V है 220, तो आपका करंट आ गया, राइट। सेकेंड केस में P है हमारा 360 वॉट्स और V है 220 वोल्ट, सेम
तो ये हमारा करंट वैल्यू आ गई। ओके, और रेजिस्टेंस कैसे आएगी? रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बाय करंट, तो वोल्टेज तो दोनों ही केसेस में 220 है। करंट की जो वैल्यूज आई है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो। सिंपल। Now let's come on to example 11.11. 100 joules of heat is produced, तो ये हमारी H की वैल्यू हो गई। In each second, तो टाइम हो गया 1 सेकेंड, in a 4 ohm resistance, R हो गया 4 ohms. Find the potential difference. ओके, तो ये कैसे आएगा? हमें पता है जो हीट है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आपको H पता है, R पता है, T पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। H इज 100 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 एंड आई वुड बी 5 एम्पियर्स। सिंपल। उसके बाद क्या पूछा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर, I की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 4, so it becomes 20 volts. Quite simple. So here comes the question set. The first question is, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? ठीक है, आपने कभी भी इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, उसकी कॉर्ड तो ग्लो नहीं करती, ठीक है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट तो ग्लो करता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉर्ड है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो वो हीट अप नहीं होता सिग्निफिकेंटली और ग्लो भी नहीं करता। पर जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है और ग्लो करता है। क्योंकि आपको पता है जो हमने हीट का फॉर्मूला करा था आई स्क्वायर आर टी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हमारा हीटिंग अप ज्यादा होगी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volts, right? तो इसमें हम सभी पैरामीटर्स देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है। सो Q, the charge is 96,000 coulombs, correct? Then time is 1 hour. इसको हम seconds में convert कर लेते हैं. It is 3600 seconds. Potential difference कितना है? It's 50 volts. Okay. Heat आपको पता है heat किसके equal होती है? Q into V, right? So this is going to become 96,000 into 50 volts. ओके, तो ये क्या यूनिट्स आ जाएंगी इसकी Q into V की? इसकी यूनिट होगी जूल्स, राइट। जूल्स में इसकी वैल्यू आएगी, so you can solve and find out the value in joules, correct. Next is, an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 amperes. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस कितना गिवन है? इट्स 20 ohms. ठीक है, करंट कितना है? 5 amperes. कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, तो टाइम हो गया 30 सेकेंड्स। हीट कितनी हो जाएगी? हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई है 5, 5 स्क्वायर, आर इज 20, टी इज 30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? जूल्स में, राइट। So next is the practical applications of heating effect of electric current. ये हम कई जगह यूज करते हैं, काफी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, लाइक इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, केटल, हीटर, ये सब हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। दीज आर ऑल बेस्ड इन जूल्स हीटिंग, राइट। इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फ्यूज है, इलेक्ट्रिकल बल्ब और फ्यूज को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग की वजह से लाइट भी प्रोड्यूस होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में हम यूज करते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होती है? जो फिलामेंट होता है, इट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल, ताकि वो काफी हॉट हो जाए और लाइट एमिट करे, पर वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग मेटल हमें ढूंढना होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, तो वो होता है जैसे टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम बल्ब फिलामेंट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, फिलामेंट थर्मली स्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है, इंसुलेटिंग सपोर्ट के लिए, फाइन।
Now bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases. ये क्यों करते हैं? फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए, right? Now most of the power consumed by the filament, it appears as heat, but small part it appears as light in the form of the radiation you get. ठीक है, तभी आप कभी देखना बल्ब काफी देर तक ग्लो करता है तो वो हीट अप हो जाता है. ओके, एक और कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग की, वो होता है फ्यूज, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज करते हैं. तो फ्यूज का क्या फंक्शन होता है? इट विल प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट. कई बार बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है सर्किट में से, तो हम कहते हैं ना फ्यूज हैज गोन ऑफ. तो फ्यूज क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सर्किट को. ओके, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस. इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट. जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इन्हें यूज करते हैं हम. अब एक फिक्स वैल्यू होती है कि इससे ज्यादा करंट उसमें से अगर फ्लो करेगा सर्किट में से, तो फ्यूज वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, उससे वो मेल्ट हो जाएगी. ओके, और ब्रेक हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो डिवाइस बच जाती है हमारी. ठीक है, तो फ्यूज वायर जनरली एक कार्ट्रिज ऑफ पोर्सलाइन में एनकेस्ड होती है, एंड or any similar material with metal ends. Okay. Fuses used in domestic purpose, इनकी rating generally होती है 1 ampere, 2 ampere, 3, 5, 10 ampere and so on. ठीक है. इलेक्ट्रिक आयरन है जो वो कंज्यूम करती है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट्स. तो उसमें करंट ऑफ 1000 by 220 amperes, that is 4.54 ampere will flow in the circuit. तो आप क्या यूज करोगे इसमें? 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर लो, कि उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा करंट अगर, तो वो ब्रेक कर जाए. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर. राइट, so rate of doing work is power. This you studied in lower classes, and this is also the rate of consumption of energy. Okay, so rate at which electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit. Okay, that you saw in equation 11.21. Now electric power it is termed as, okay, capital P is given by V into I. इसमें आप V is equal to IR पुट करोगे तो P equal to I square R हो जाएगा, या इसको आप V square by R भी लिख सकते हो. ठीक है, SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की? वॉट. राइट, it is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Okay, तो 1 watt क्या होगा? 1 volt into 1 ampere या 1 VA you can write. वॉट जो यूनिट होती है वो बहुत स्मॉल होती है, जो डे टू डे प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं, हम बड़ी यूनिट यूज करते हैं, वो होती है किलोवॉट्स. ओके, 1 किलोवॉट इज 1000 वॉट्स. ओके, now electric energy is a product of power and time. तो electric energy की यूनिट क्या होगी? watt into hour, that is watt hour. WH लिखते हैं. 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. ओके, सपोज आपके पास एक बल्ब है 1 watt का, उसे आप 1 hour के लिए ग्लो करना चाहते हो, तो आपकी पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी? 1 watt hour. ओके, कमर्शियल यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है किलोवाट आवर. ओके, 1 किलोवाट आवर इज, किलोवाट क्या होगा? कितने वॉट्स होंगे? 1000 वॉट्स. ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स. तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट 3.6 into 10 raised to power 6 वॉट सेकंड विच इज जूल्स. ओके, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जाता है. राइट, now next we have an example. An electric bulb is connected to a 220 volt generator. तो हमारा जो voltage इसमें given है that is 220 volts. Okay. Current is 0.5 amperes. What is the power of the bulb? Power आपको पता है V into I होता है. Value substitute की तो you get 110 watts. Right? Next हमारा जो एग्जाम्पल है, इट सेज एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 40 वॉट्स. ठीक है, तो पावर कितनी है? 400 वॉट्स. पावर इज 400 वॉट्स. ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे. ठीक है, एक दिन में 8 आवर्स उसे ऑपरेट करते हैं. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days at ₹3 per kilowatt hour? Okay, this is the question. तो किलोवाट में गिवन है हमारी जो कॉस्टिंग है. राइट, तो 30 डेज में एक्चुअल में एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी?
तो एनर्जी जो आपकी कंज्यूम होगी 30 डेज में वो कितनी होगी? 400 वॉट्स है, ठीक है। 8 आवर्स पर डे है, एक दिन में इतने वॉट आवर्स होंगे, ओके। अगर आप वॉट आवर यूनिट्स में लेते हो, ठीक है, 8 डेज में इतना होगा, 30 डेज में कितना होगा? इंटू 30, राइट। सो दिस इज द वॉट आवर्स इन 30 डेज जो उसकी एनर्जी कंजम्पशन होगी, ठीक है। तो ये जो हमारी टोटल वैल्यू आएगी, अब हमें जो कॉस्ट गिवन है, ये वाली जो वैल्यू है ये वॉट आवर्स में है। अगर इसको किलो वॉट आवर्स में करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो इट विल बी 1000 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 8, दैट इज 96 किलो वॉट आवर हो जाएगा, ओके। अब 1 किलो वॉट आवर की कॉस्ट कितनी है? 1 किलो वॉट आवर की कॉस्टिंग है ₹3। तो इतने किलोवाट्स की कॉस्टिंग कितनी होगी? इंटू 96. So this is going to be the total cost, that is 288 rupees for the operation of the refrigerator. Correct? Now we have two conceptual questions in front of us. First is, what determines the rate at which energy is delivered by a current? So the rate at which energy is delivered depends on the current voltage. Okay, it is given by P is equal to VI, where V is the voltage, I is the current. Okay. Next one is, an electric motor takes 5 amperes from a 220 volt line. तो करंट कितना है? 5 amperes. वोल्टेज कितनी है? 220 volts. Determine the power of the motor. पावर कितनी हो जाएगी? V into I. तो it will be 220 into 5. Right? Unit क्या होगी? Watts. Then they say, what is the energy consumed in 2 hours? Energy क्या होती है? Energy is power into time. ठीक है, तो आपका आ जाएगा 220 into 5 into 2. यूनिट क्या होगी? ये वॉट्स में था, ये आवर्स में है, तो वॉट आवर्स. ओके, यू कैन सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यूज. सो सिंपल, आपको जस्ट ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं और इन एक्सप्रेशंस को यूज करके रिजल्ट्स निकालने हैं. So here is a summary of the complete chapter. Okay. तो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में स्टिल कोई डाउट है तो आप वीकेंड पे फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. एंड आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड विद द कंप्लीट सिलेबस. And if you have any doubts, you can even post in the comment section. I would be glad to resolve your issues. Right? So let's see what it says. A summary of electrons moving through a conductor constitutes an electric current. Okay. Conventionally, the direction of current is taken opposite to the direction of flow of electrons. Okay. SI unit क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर्स. ओके. टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या यूज करते हैं हम? सेल और अ बैटरी. ओके. सेल जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स और मेजर किस में करते हैं? वोल्ट्स में, कैपिटल V से डिनोट करते हैं. ओके. रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. SI यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम्स है. ओके. Ohm's law, it says the potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it, provided the temperature remains the same. Okay. Then resistance of a conductor depends directly on its length, inversely on the area of cross section, and also on the material of the conductor. Okay. सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. पैरेलल में इस टाइप से रेसिप्रोकल्स का सम होता है, राइट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर कैसे देते हैं? W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T. पावर ऑफ पावर की यूनिट क्या है? इट्स वॉट, कैपिटल W. 1 watt पावर क्या होती है? इट इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt. Okay. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इट इज किलो वॉट आवर. ओके. और 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 3.6 into 10 raised to the power 6 joules. I hope the concept is clear. Thanks for watching the video. Stay tuned.